ابھی ہمارا انشاءاللہ بہت بڑا ایک پروگرام ہونے والا ہے. جی جی جی. اب کون آ رہا ہے بھائی؟ فرحانہ 5 منٹ بعد فرحانہ آ رہی ہے. ہاں وہی لاڈلی ہے بہت میری. جی جی اگلا مشاہدہ جو ہے وہ بارگاہ ادب پہ رکھیں گے, یہ تجرباتی ہے. تو یہ تو بہت اچھا ہے کہ 3-4 لوگ ہیں. میں اس لیے اگر آپ کہتے ہیں نا کامران بھائی مشاعروں سے ویسے بھی اجتناب کرتے ہیں. یہ کون ہے؟ میں مشاعرے اٹینڈ کرتی ہوں اس لیے کہ ہمارے لیے فائدے مند رہتے ہیں زوم کے مشاعرے, کہ ہم آفس سے بعد میں یوز کر سکتے ہیں. شازیہ تصویر نہیں آ رہی آپ کی؟ امین اڈیرائی انٹر ہو رہا ہے. ویڈیو نہیں آ رہی یار, ویڈیو پہ آؤ نا. ویڈیو پہ آؤں؟ اچھا میں تو واک کرنے جا رہی تھی بس, چینج کر رہی تھی. چلے آ جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ ہم لوگ کون سے حسین ہیں. ہم بات یہ ہے کہ لیکن بس اپنے آپ کو ذرا سا پاؤڈر لگا لیتے ہیں بس. ہاں نہیں وہ تو ضروری ہے بھائی, آپ بغیر میک اپ کے بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے اس میں. کوئی یہ آج آپ نے کہا مجھے جہانا پا بھی یہی کہتی ہیں سبین تم میک اپ بالکل نہیں کیا کرو, تم بغیر میک اپ کے زیادہ اچھی لگتی ہو. ویڈیو میں اصل میں یہ ویڈیو کا مسئلہ ہے. ویڈیو جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو خوبصورت کر کے بناتا ہے, وہ کس طرح بدصورت بھی ہو نا اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے. نہیں وہ تو تصویریں خوبصورت ہو رہی ہے, لیکن ویڈیو تو وہی چیز آتی ہے جو ویڈیو میں آپ ہوتے ہیں. نہیں تصویریں بھی خوبصورتی آتی ہے. وہ میں نے وہ کیسا بھی ہو تصویر اس کی بہت اچھی آتی ہے. مثال کے طور پر آصف الیاس کو آپ جانتی ہوں گی ریڈیو پاکستان میں, آپ اس کی تصویریں دیکھ لیں, آپ جب سامنے آئے گا تو نہیں پہچان سکتے آپ اس کو. اور میں سامنے سے زیادہ اچھی لگتی ہوں, تصویروں میں نہیں اچھی لگتی ہے نا, یہ بات ہے. نہیں انسان بس خود اچھا جو اچھا ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے. سنیے بھائی, ٹائم ضائع نہیں کیجیے, سنیے. 40 منٹ کا ہوتا ہے, اس کو جلدی جلدی کرنا چاہیے. ہاں میں یہی بات کہہ رہی ہوں, شروع شروع کر کر دیں. دیجیے نا. اس میں سینئر جونیئر کا نہیں کرے, جو آئے پڑھ لے, اس سے تھوڑی کوئی اس میں کیا. یہ تو آج اور کیا, یہ تو ایسے ہی ہے. میں آپ کی یہی بات کہہ رہی ہوں. اور کیا. اچھا یہ آپ کا اس کا نام کیا ہے؟ یہ اس کا کس کا یہ جس کے تحت ہو رہی ہے یہ بزم کی شعر و بات ادب, بزم شعر و ادب. نہیں یہ ہے وہ آپ کا لیول ہے. ہم شاعر ادیب, ہم شاعر ادیب جس کی ایڈمن ہے ماہی صاحبہ. جی ماہی بھی ہیں اور میں بھی ہوں. اچھا ماہی کا پورا نام کیا ہے؟ اور یہ کہاں جی آپ تو نہیں ہوتے, آپ تو مجھ سے ایبسنٹ ہوتے ہیں. صاحبہ میرا پورا نام اسما دری ہے, لیکن شاعری کے حوالے سے میرا نام ماہی ہی جانا جاتا ہے. اسما زرین ماہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دری چادروں والا دری. دری اسما دری. اچھا ہاں جی اسما دری ماہی. ٹھیک ہے. کہاں سے ہیں اسما آپ؟ میں ملتان سے ہوں. ٹھیک ہے. ارے بھائی ملتان سے تو ہمیں بہت سارے لوگ بلا رہے ہیں, ہم انشاءاللہ آئیں گے تو سسرالی رشتے دار بھی رہتے ہیں. کون رہتے ہیں؟ سسرالی رشتے دار بھی رہتے ہیں, وہ ان کو سب جانتے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ 1 منٹ آپ کو بتاتی ہوں. کافی کیونکہ ہمیں اب میں اس پہ موبائل پہ آپ کو نہیں کر سکتی, بتا سکتی. مطلب ان کا نام کافی ہے وہاں, سب ان کو جانتے ہیں نا. ہماری فیملی راجن پور میں ہے, لیکن ہم لوگ کی یہ سارا ریلیٹڈ ان سب چیزوں سے ہوتا ہے. مجھے نام بتائیں, کیونکہ میں ایک چینل کے لیے ایز اے ہوسٹ بھی کام کر رہی ہوں یہاں, تو شاید میں ان کو جانتی ہوں. نہیں وہ شاعر نہیں ہے جن کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا, ان سے ابھی میں مطلب ہم تو بھائی جان کہتے ہیں بیسیکلی, لیکن وہ کافی وہاں کا شاید MNA وغیرہ بھی ہیں اور رہے ہیں. ان کی بیگم کا نام رخشندہ ہے, کیونکہ ہم تو ابھی ان کی بیٹی آئی ہوئی تھی, ان کا اوپن ہارٹ سرجری تھی نا. اچھا ہاں تو
कामरान साहब शुरू करें क्या हम? शुरू करें, अब जो आता जाएगा वो शामिल होता जाएगा। से सुन लेते हैं। जी जी। अमीन साहब भी आ चुके हैं, किशोर उरूज भी आ चुकी हैं, काफी सारे पर्सन हो। हाँ, आज की आवाज नहीं आ रही। मुशायरा छोटा सा मुशायरा है जो हमारे की ये पहली काविश है और वो चाह रहे हैं कि हम आइंदा मुशायरे जो है वो इसी तरह अपने रखते रहें। और ये हमारा एक हम शायर हम अदीब एक व्हाट्सएप चैनल है, इसकी एडमिन है माही दरी, सॉरी अस्मा दरी, और जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, तखल्लुस माही रखती हैं। ठीक है ना? ठीक है तारुफ आपको? बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी, तो अब मैं किशोर उरूज आ गई है? नहीं, किशोर आ गई है, आवाज नहीं खुली। अच्छा, तो शाजिया आप अपना मतलब आप सुना दीजिए। हम शाजिया शाजिया आलम शाजी से हम रिक्वेस्ट करते हैं उनको। शाजिया थोड़ा सा कैमरा इधर करूंगी ना, अभी दिखाऊंगी कि मेरी साइकिल यही मेरे कमरे में मैंने रखी है। अब आपको मैं मेरे कमरे में सारी मशीनें रखी हुई हैं, लेकिन बात जो पार्क में करने की है या जिम में करने की है ना, घर में जिम पूरा बना हुआ है, लेकिन वो ये है कि टाइम हो ना तो जब किया जाए, बस हफ्ते में 1-2 दिन चली जाती है। कहाँ से शोर हो रहा है? गाना बज रहा है। कामरान साहब एक दफा सबको म्यूट कर दें फिर। हाँ, कहीं से हो रहा है। कहीं से शोर आ रहा है। कामरान साहब एक दफा आप हो गया, अब सही हो गया। हो गया सही। तो नहीं, शोर जितना मचा के ठीक है ना, बुरा मत मानिएगा। जी जी इरशाद कीजिए किशोर। हाँ, एक गजल है, ताजा गजल है ये। दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज। क्या कहने भाई, ये तो बहुत अच्छी है। जब से हुआ दोस्त दगाबाज, इस पे मैंने आपको फोन किया था। जब भी आपको देख के मुझे याद आएगी यही सुना दूं। मुझे देख के आपको दगाबाज याद आ गई। दिल उस दगाबाज, सोचा ही न था होगा मेरा दोस्त दगाबाज। क्या कहने, और पूछा कि बड़ा सबसे बड़ा कौन सा दुख है, सब बड़ा कौन सा दुख है। सुभान अल्लाह। एक शख्स ने हसरत से कहा दोस्त दगाबाज। एक शख्स ने हसरत से कहा दोस्त दगाबाज। वाह वाह वाह। दुश्मन के हवाले से ये है मेरा नजरिया। दुश्मन के हवाले से है ये मेरा नजरिया। दुश्मन के हवाले से ये है मेरा नजरिया। दुश्मन है मेरा सबसे बड़ा दोस्त दगाबाज। क्या कहने, बहुत दुश्मन है मेरा सबसे बड़ा दोस्त दगाबाज। इखलास के पैकर को अगर ढूंढने निकलो, इखलास के पैकर को अगर ढूंढने निकलो, हर मोड़ पे मिलता है नया दोस्त दगाबाज। क्या कहने, सुभान अल्लाह। इखलास के पैकर पे अगर ढूंढने निकलो,
हर मोड़ पे मिलता है नया दोस्त दगाबाज। क्या कहें? क्या गुजरे जमानों में सभी दोस्त थे मुखलिस? सबीन जी, क्या गुजरे जमानों में सभी दोस्त थे मुखलिस? बहुत प्यारा मिसरा है। या पहले जमानों में भी था दोस्त दगाबाज? हाँ, क्या गुजरे बात है। जमानों में सभी थे मुखलिस? बहुत शुक्रिया। या पहले जमानों में भी था दोस्त दगाबाज? क्या कहें? चेहरे पे तेरे भी हंसी आती नहीं किश्वर? चेहरे पे तेरे भी हंसी आती नहीं किश्वर? आती। क्या बात है। क्या चेहरे पे कहें? तेरे भी हंसी आती नहीं किश्वर? लगता क्या है कहें? तेरा भी हुआ दोस्त दगाबाज? क्या कहें? दिल टूट गया जब से हुआ दोस्त दगाबाज। क्या कहें? सोचा ही न सुभान था होगा मेरा दोस्त दोस्त। दगाबाज। बहुत क्या शुक्रिया। हाँ किशोर, बस बहुत शुक्रिया कि आपने हम आके हमारी महफिल को मुअत्तर किया, और मुझे यकीन है हाँ, कि मैं आप मुझे काम अच्छा पे नहीं लग हैं रहा जी। कि मैं जाऊं आपसे नहीं कोई बात। डिस्कनेक्ट हूं, लेकिन ये कि मजबूरी है, तो अच्छा इंशाल्लाह फिर लगता है मैं कि ज्वाइन किश्वर करूंगी। साहिबा का बॉलर है ना कोई किश्वर बात नहीं, साहिबा? आप आए जी, तो नहीं आपको शिरकत चीजें करते नजर आ रही हैं। होंगी, ये देखिए क्लाइंट चल रहे हैं अभी। क्योंकि मेरा भी यहाँ सिलोन है मुल्तान में। अच्छा, माशाल्लाह। मैं मुल्तान आ रही हूँ अभी इंशाल्लाह 10 तारीख के 15 के बाद इंशाल्लाह मुलाकात होगी, मुझे इंशाल्लाह। बताइएगा। इंशाल्लाह। फरीन, हाय फरीन। फरहाना। अच्छा भाई, सबका बहुत शुक्रिया। ओके, सी यू नेक्स्ट ओके, टाइम। अल्लाह ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फरहाना मेकअप करके क्यों नहीं आई? मैं तो बुखार में हूँ, पता है आपको, मुझे 102 बुखार है। अल्लाह खैर। ओहो, अल्लाह अल्लाह क्यों? मैं कामरान ने इसरार किया, जरूर आती हूँ मैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया तुम आ गई हो। पैराडॉल ली, तो पैराडॉल लेती रहे आप। ये वो नहीं है। बहुत हमारी बहुत प्यारी शायरा, छोटी सी नन्ही सी हमारी बहन फरहाना अशरफ, जो बुखार में, देखे कामरान भाई आपकी बात कोई नहीं टाल सकता, ये हैरत की बात है। जी ये जी सब मेरे लाइन पे चल रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन पे, है ना? तो फरहाना से मुल्तमस है कि फरहाना अपना कलाम सुनाइए। बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बत कि मैं कभी इनकार कर ही नहीं सकती। गजल अर्ज करती हूँ। दूरियां हूँ लाख साजन, तू तो मेरे पास है। क्या बात है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, तू तो मेरे पास है। क्या कहने? तुझसे मिलने की तो मुझको रब से अपने आस है। क्या कहने? तुझसे मिलने की तो मुझको रब से अपने आस है। क्या कहने, आप, क्या कहने? बहुत शुक्रिया। आप पर हक है किसी दूजे का भी मेरे सनम। आप पर हक है किसी दूजे का भी मेरे सनम। क्या कहने? आप में भी तो है कितना हंसी एहसास है। क्या कहने? सुभान क्या अल्लाह। बात है। क्या कहने? मुकर्रर। मेरी आंखों में कहाँ थी इससे पहले ये मिठास। क्या कहने? मेरी क्या आंखों कहने? में कहाँ थी इससे पहले ये मिठास। क्या कहने? शायद आप ही का नाम मुझको रास है। क्या शायरी कहने? में, सुभान अल्लाह। शायरी में आपका ही नाम मुझको रास है। क्या कहने? क्या कहने? मैं भला किस तरह कहलाऊं तेरे काबिल सनम। क्या कहने? मैं भला किस तरह कहलाऊं तेरे काबिल सनम। मैं तो हूँ एक आम पत्थर और तू और अलमा। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक तो आम क्या हूँ बात। पत्थर और तू अलमास है। मेरे घर में आए तुझको गो के एक मुद्दत हुई। मेरे घर में आए तुझको गो के एक मुद्दत हुई। मेरे घर की दीवारों में अब भी तेरी बास है। क्या कहने? सुभान अल्लाह। दूरियां हो लाख साजन, तू तो मेरे पास है। क्या तुझसे कहने? मिलने
तो मुझको रब से अपने है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप की हाल में आए और आप साहिबा कामरान साहब के बहुत खूबसूरत। और ये जो अल्लाह हमारा की मुशायरा, दुआ है। हम शायर हम अदीब के व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन माही के तेरे तमाम माही हमारी आज की ये एडमिन है, लेकिन क्योंकि कामरान साहब की बात कोई नहीं आ सकता तो निजामत मैं कर रही हूँ। और कामरान साहब आप कौन है हमारे साथ? अमीन ओडेराई साहब है। अमीन ओडेराई साहब, अच्छा। अमीन ओडेराई साहब का नाम तो मैंने बहुत सुना है, बल्कि वो हमारे बहुत सारे ग्रुप्स में भी होते हैं, लेकिन कभी आमने सामने बात नहीं हुई। आदाब अमीन ओडेराई साहब, आदाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाब अपना कलाम पेश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ अशार आपकी समातों की नजर। जी। दश्त में फिक्र नारसाई क्या, दश्त में फिक्र नारसाई क्या, दश्त में फिक्र नारसाई क्या, बहुत खूबसूरत। हिजर क्या, हिजर की कमाई क्या कहने। बहुत शुक्रिया। दश्त में फिक्र नारसाई क्या, हिजर क्या, हिजर की कमाई क्या कहने, जो कभी थी सवार सांसों पर, क्या कहने, जो कभी थी सवार सांसों पर, वो घड़ी फिर से लौट आई क्या। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया, अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। जो कभी थी सवार सांसों पर, वो घड़ी फिर से लौट आई क्या। बहुत अच्छे। हम जवानी तो अपनी हार चुके, जवानी तो अपनी हार चुके, हम जवानी तो अपनी हार चुके, कैद से पाए अब रिहाई क्या। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। छोटी बहन की हम बहुत जवानी तो अपनी हार चुके, बहुत अच्छे। कैद से पाए अब रिहाई क्या। क्या कहने, आवाज गई इनकी। कैद से पाए अब रिहाई क्या, क्या कहने, सुभान रोते अल्लाह। रोते रोते निढाल हो गई हो, रोते रोते निढाल हो गई हो, रोते रोते निढाल हो गई हो, बेटी होती नहीं पराई क्या। क्या कहने भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी। रोते रोते निढाल हो गई हो, बेटी होती नहीं पराई क्या, और साते गम में इस कदर तन्हा, क्या कहने, साते गम में इस कदर तन्हा, हाँ। तेरा कोई नहीं है भाई क्या। क्या कहने, सुभान अल्लाह। साते गम में इस कदर तन्हा, क्या कहने, तेरा कोई नहीं है भाई क्या। क्या कहने। और शेर देखिएगा कि तेरी बस्ती के भोले भाले लोग, तेरी बस्ती के भोले भाले लोग, तेरी बस्ती के भोले भाले लोग, क्या कहने, माँ को कहते हैं अब भी माई क्या। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तेरी बस्ती के भोले भाले लोग, तेरी बस्ती के भोले भाले लोग, माँ को कहते हैं अब भी माई क्या। बहुत प्यारी। और मगता है कि कोई आवाज दे रहा है अमीन, कोई आवाज दे रहा है, कोई आवाज दे रहा है अमीन, तुझको देता नहीं सुनाई क्या। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत। कोई आवाज दे रहा है अमीन, बहुत खूबसूरत। तुझको देता नहीं सुनाई क्या, दश्त में फिक्र नारसाई क्या, हिजर क्या, हिजर की कमाई क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। रोते रोते निढाल हो गई हो, बेटी होती नहीं पराई क्या। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शेर। और यकीनन इस वक्त का सबसे बेहतरीन शेर आपने पेश किया, और जो हमें याद हो गया कि रोते रोते निढाल हो गई हो, बेटी होती नहीं पराई क्या। बहुत खूबसूरत। और मेरा भी इस पे एक शेर है कि चलो कराएं हम अफसोस जाकर, चलो कराएं हम अफसोस जाकर,
कोई बेटी पराई हो रही है। वाह, क्या बात। चलो कराएं हम अफसोस जाकर, कोई बेटी पराई हो रही है। अमीन उडराई साहब, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। और मेरे ख्याल में अब हमारी अस्मा दरी रह गई है ना, अस्मा दरी साहब। कामरान साहब आप सुनाएंगे कुछ? नहीं कामरान भाई, मैं भी सुन रहा हूँ। अच्छा, तो अब मैं मुल्तमिस हूँ अस्मा दरी, जो माही तखल्लुस करती हैं, हमारी बहुत प्यारी मुल्तान की शायरा। और हम बेचैन हैं कि अपनी अस्मा से कुछ सुने, क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं। अस्मा सुनाइए, खरी खरी सुनाइए। जी जरूर। नहीं, मैं मुल्तान के लोग बहुत मीठे होते हैं, वो खरी खरी सुनाना चाहे भी तो नहीं सुना पाते। नहीं, लेकिन मुझे अच्छा, मेरे इत्तेफाक ऐसा जब है सुनाने आते हैं तो अपने फिर तो घर में निजामत सुनाते ही करते हैं। करते ना जी, मेरा लहजा कुछ ऐसा बन चुका है हंसी मजाक का, और ये लोग ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि मैं इसका निजामत कर रही होंगी। अभी हैदराबाद की मुशायरे में 1.5 घंटे में मैंने 40 शायर पढ़ाए अमीन साहब। माशाल्लाह। क्या कहने। आज की महफिल के नाम मैं अपने 2 शेर करती हूँ कि जी, मेरी सोचों के गुलिस्तान में है, मेरी मेरी सोचों की गुलिस्तान। सोचों के गुलिस्तान में है, सभी परिंदे अभी उड़ान में है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान, बहुत हुस्न अच्छे। वालों को बहुत जो उम्दा माही। पसंद आए, हुस्न वालों को जो पसंद आए, शेर क्या कहने, ऐसी मेरी जुबान में है। बहुत हुस्न उम्दा, वालों को बहुत जो उम्दा पसंद माही। आए। क्या बात मेरी है। हुस्न सोचों वालों के को पसंद आ गए। गुलिस्तान में है, सब परिंदे अभी उड़ान में हैं। हुस्न वालों को जो पसंद आए, शेर ऐसी मेरी जुबान में है। क्या और कहने, एक वाह, गजल है क्या कहने। आप सबके नाम के, वो उतरे तो कहीं दर्द के मारे उतरे, उतरे तो कहीं दर्द दर्द के मारे उतरे। दर्द उतरे तो कहीं दर्द के मारे उतरे, मेरे आंगन में कहाँ चांद सितारे उतरे। क्या कहने, सुभान अल्लाह, उसकी सुभान। आंखों से वाह उसकी वाह वाह वाह। आंखों से फकत खुशबू की किरणें उतरे, मेरी क्या कहने, आंखों से मगर अश्कों के धारे उतरे। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। क्या कहने। वाह। ये अलग बात है, कोई सहारा ही नहीं, ये अलग बात है, वादिए कोई सहारा इश्क नहीं। में हम तेरे सहारे उतरे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। वाह से आवश्ता सरी रब्त रहेगा अपना, खाक में क्या उतरे कहने, तो साथ हमारे उतरे। क्या कहने, क्या वाह कहने। वाह। किस किस से मुमकिन थी रगे जां की रसाई माही, क्या करके कहने, हैरान करके हैरान मुझे जान से प्यारे उतरे। क्या कहने, क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। दर्द दर्द उतरे तो कहीं दर्द के मारे उतरे, मेरे आंगन में कहाँ चांद सितारे उतरे। क्या कहने, बहुत सुभान शुक्रिया। अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अभी क्या बात है, एक्चुअली क्या सभी बात है। साहिबा, वाह वाह वाह। जी, मैं लिखती हूँ, मतलब मैं मुल्तान के बहुत सारे मुशायरे भी अटेंड करती हूँ, मैंने लाहौर के भी अटेंड किए हैं। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत कुछ अपना मार्केट में लेकर आऊँ, ताकि मेरी किताबें आपके खूबसूरत हाथों में हो और आप महसूस कर रहे हो कि मैं क्या लिख रही हूँ। नहीं जरूर। बात ये होती है, माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह। बात ये है माही, कि जी जी, एहसास से दर्द पैदा होता है और दर्द से शायरी। शायरी ऐसा ही है। करने के लिए सिर्फ एहसास की जरूरत होती है और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। और जब मतलब, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि शायर जो शेर होता है ना, शायरी जो की नहीं जाती, जो शायरी हो जाती है, वो आसमान पे लिख दी जाती है। और और किसी को भी मैं जी, अक्सर एक बात कहती हूँ कि मेरा कलम मेरा कलम अब मेरा साथ नहीं देता, मेरा कलम अब मेरा साथ नहीं देता। सौंपे थे कुछ किस्से कहानियां, मगर अब क्या मेरा कलम मेरा साथ नहीं देता। क्या कहने, क्या कहने। जब भी लिखने बैठती हूँ तो शोर करता है,
जब भी लिखने बैठती हूँ तो शोर करता है, रोता है, सिसकता है, न जाने पर क्यों कलम मेरा अब साथ नहीं बहुत देता। बहुत मैंने खुश मोहब्बत की कुछ चीजें इसे सौंप रखी थी, अब जो कहना चाहूँ लिखो, मगर अब कलम मेरा साथ नहीं देता, वाह, मगर कलम मेरा साथ नहीं देता। क्या बात है। तो हुस्न वालों को बाकी जो बाकी पसंद आए, जी जी पहले मुशायरे हुस्न वालों को जो पसंद आए, शेर जुबान, ऐसी वो भी सुनाइएगा। ऐसी मेरी ज़बान। वसीम जी की बिल्कुल, रातों ये में मुझे वैसे बहुत शेर पसंद है कि मेरी सोचों के गुलिस्तान में है, सब क्या परिंदे अभी उड़ान में है। हुस्न वालों को जो पसंद आए, शेर ऐसी मेरी जुबान में है। क्या खूबसूरत बात, बहुत जब खूबसूरत। सुनाते हैं वसीम की रात में, वालों को जो पसंद आए, फिर ऐसी। हाँ जी, क्या कहा कामरान साहब हमारी आपने? हाँ, मैंने कहा आज ये खत्म हो जाए तो वसल की रातों में नींदें आया नहीं करती। अरे वो तो बहुत पुरानी हो गई है। अगर वो सुनाए, बहुत अच्छी है, अच्छा, वो बहुत पसंद है मुझे। वस्ल की रातों में नींदें आया नहीं करती, धड़कने जाकर कभी आया नहीं करती। वाह, एक उम्र होती है जज्बात को हाथों में थामे रखने की, फिर लड़कियां हाथों पे मेहंदी रचाया नहीं करती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई कह दे कि मुझे तुमसे मोहब्बत सी हो गई है, फिर मारे शर्म के वो लब हिलाया नहीं करती। क्या बात है। क्या वो मान जाए तो ठीक है, वरना छोड़ दो माही, जबरदस्ती के रिश्ते लड़कियां जताया नहीं करती। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सच है कि वस्ल की रातों में नींदें आया नहीं करती, क्या माशा कहने, धड़कने बहुत जाकर कभी आया नहीं करती। बहुत क्या शुक्रिया। कहने, बहुत शुक्रिया माही। आज का जो मुशायरा है, जो हम शायर हमदी के व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन अस्मा दरी साहिबा ने आपका मैं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब यहाँ तशरीफ लाए और कुछ बीमारी के हालत में हमारे सामने हैं, और यकीन कीजिए दिल से उनके लिए बहुत सारी दुआएं निकल रही हैं। हमारी फरहाना अशरफ बहुत प्यारी शायरा हैं, किफर अरूज और शादी आलम शादी, ये सारी हमारी अभी बिल्कुल समझ लें कि जस्ट ये ताज़ाकार शायरा हैं और अभी इन्होंने आना शुरू किया है मुशायरों में और अच्छा शेर कह रही हैं। और आज की बच्चियां जो है वो लड़कियां या जो आने वाले हैं तो वो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छा शेर कह रही है, तभी उनको बुलाया भी जा रहा है और उनसे सुना भी जा रहा है। और हम तो खुद बिल्कुल ऐसा अभी तक हम तो खुद ये सोचते हैं कि हम अभी सकीन तक साहबा, सीख बड़ा मुझे शर्फ हासिल हुआ खलीलुर रहमान कमर साहब से मुलाकात का पिछले जी। महीने। तो उनसे एक बैठक हुई, चाय के दौरान बहुत सारी बातें हुई, तो उनका मुझे एक जुमला बहुत अच्छा लगा। जब उनको मैंने अपना नाम बताया तो उन्होंने कहा, सुनो लड़की, खुद को बेमोल मत करना। बिल्कुल, तो देखिए मैंने बहुत अभी अच्छा, ये शेर बहुत अच्छी लिखा बात था। कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात जी, कही। मैंने यही बार बार ये बात मैं लिखती हूँ और बल्कि अभी शेर भी लगाया था तो जिसपे बड़ी ही लेदे हुई थी कि मैं तो खुद ये बात कहती हूँ कि कुरान की 30 पारों में मैं तो हदीस पे बात, कुरान पे बात करती हूँ कि कहीं पे भी मर्द बिका है, औरत तो नहीं बिकी ना। मैं तो खुद ये बात कहती हूँ, देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बिके, कुरान की एक मिसाल बहुत होती है, हमें मजहब पे बात नहीं करती, लेकिन औरत अगर औरत है वो कभी नहीं बिकेगी। आपको शेर भी ऐसा नहीं ही है। समझ कभी एक्चुअली नहीं वो को जिस आई थिंक मुझे लगता है जो उन्होंने ये जो जुमला मुझे कहा, वो शायद इसलिए भी कहा था कि अपना एक मोल लगाओ। मोल का वो कि खुद को अनमोल कर दो। लोग तुम्हारी औरत तो अनमोल है ना। देखिए औरत की पैरों के नीचे जन्नत अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं रखी। मैं तो सिर्फ यही दर्ज दे रही हूँ, ये फरहाना भी जानती है, मेरा भी ये प्रोग्राम जो हुआ था जो फरहाना, और वैसे भी मैं कहती रहती हूँ कि मतलब औरत को खुद बेसिकली नहीं पता कि वो कितनी ताकतवर है, उसको कोई जेर नहीं कर सकता। छोटी छोटी बर्दाश्त का मादा औरत में ही होता है। औरत घर बनाती है, कोई इसका घर, वो नहीं चाहे तो कोई इसका घर नहीं तोड़ सकता।
मैं तो हमेशा सबसे बड़ी औरत की बात फेवर है में बात कि करती हूँ। औरत में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रखी है कि अगर वो बेटा बनने पे आए ना तो 10 बेटों के बराबर काम कर जाती है। भाई देखिए, मेरा एक शेर जो आप लोगों को सबको ही मेरे शेर की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी वो एक इतनी जुनून में शिद्दत में लिखा हुआ शेर था कि पहले डरती थी एक पतंगे से, पहले डरती थी एक पतंगे से, माँ हूँ अब सांप मार सकते हैं। और ये शिद्दतें होती हैं, ये शिद्दतें होती हैं जो हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देती हैं। आज दुनिया के लिए ये शेर एक मिसाल बना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये माही बात यही है कि अगर आप अपने खुद अच्छे हैं ना तो सब अच्छे हैं। आप नहीं, आपका काम बोलता है, आपका कलाम बोलता है। आप देखें चाहे मर्दों से भी हो, लेकिन अगर कलाम अच्छा होगा ना, अब देखें मुझे अगर कहें कि मैं बिल्कुल न्यू हूँ तो मैं इंटरनेशनल पढ़ के भी आ चुकी हूँ और वहाँ पर अल्लाह का शुक्र है इतनी कामयाब रही, इतना कामयाब दौरा रहा मेरा। तभी तो उनको बुलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए मुझे इंटरनेशनल लेवल पे बुलाया जाता है और मैं वहाँ पढ़ कर आती हूँ। मेरे लिए ये तो एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। जी। और बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को मनवाते हैं हम दूसरे मुल्कों में जाकर। ख़वातीन होना तो सबसे बड़ी बात है। जी जी जी, ख़वातीन होना जुर्म भी बात है कि जो जिसके कलम में जितने हीरे जवाहरात उसके सफ़े पे लेकर आता है बंदा, तो मैं कहती हूँ अगर आप उस पे अच्छा काम कर रहे हैं ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये कामरान साहब बहुत अच्छे से हैं मेरे साथ। बात कहती हूँ सबीन साहबा, मैं आपसे एक बात कहूंगी कि अगर हर शख्स अपने क्राइटेरिया में रहकर काम करे तो मेरे ख्याल से बहुत खूबसूरत है ये। मर्द को औरत से अफजल ना समझो, औरत को मर्द से अफजल ना समझो। जो उनके हकूक, उनका जो एक लेवल है, अगर कुरान देता है तो उसे दुनिया में भी लागू रखना चाहिए। बिल्कुल बराबरी होनी ही चाहिए। औरत एक अपनी जगह का खूबसूरत रखती है और जो मर्द है उसकी एक अपनी वो है। हम क्यों उसके देखिए मर्द को अफजल बनाया है कि अगर सजदा जायज होता खुदा के बाद तो शौहर को होता, तो बिला वजह तो नहीं बनाया ना, यकीनन उसकी अहमियत है। लेकिन ये कि इस औरतें आजकल मैं बहुत माजरत के साथ यहाँ पर जितनी भी खवातीन हैं, औरतों को पता चल गया है कि हमारे हकूक बहुत हैं, वो इस पे भी आजकल इतराती हैं। नहीं है, देखो मैंने आपकी सबका है, ये सबके लिए नेचुरल। बिल्कुल आप सही कह रही हो। मैंने इस पे लिखा था ये इस पे जैसे आप कह रही हैं मैंने लिखा था, तो मैं सिर्फ आपको यही सुना देती हूँ ताकि आप इस वक्त औरत मर्द का झगड़ा खत्म हो जाए। सुनिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप सुनाइए। मेरा मर्द से कोई झगड़ा नहीं है, मेरा मर्द से कोई झगड़ा नहीं है। सुना है ये मैंने कि कुछ लोग हैं जो सुना है ये मैंने कि कुछ लोग हैं जो ये नारे लगाते हैं मर्जी करेंगे, न जाने वो किस किस्म की मर्जियां चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है कि ये जिंदगी में मेरी तलखियां चाहते हैं। मुझे तो ये लगता है ये जो मेरा खानदानी निजाम एक मुद्दत से कायम है, ये सब इसको ताराज करने की ही जस्तजू में मगन है। मुझे तो ये लगता है मुझे वरगलाने की कोशिश है, मुझे वरगलाने की कोशिश है बेसूद। मेरा घर जलाने की कोशिश है बेसूद, ये मुझको मिटाने की कोशिश है बेसूद। सुना है ये मैंने कि आजादी के नारे भी लग रहे हैं। ये लोग एक ऐसी आजादी के हैं तमन्नाई जो अहले मगरिब ने औरत को दी है कि औरत को फकत जिनसी तस्कीन का सामा बने बस। मैं इनका कहा कैसे तस्लीम कर लूं कि मैंने तो देखा है एक मर्द वो है जो मुझको मेरे बाप की शक्ल में है मिला और मुझे दुख में तकलीफ में देखकर एकदम जो तड़प उठता है। मेरी जिंदगी को जो खुशियों से भरने की खातिर, मेरी जिंदगी को जो खुशियों से भरने की खातिर जवानी में बूढ़ा से लगने लगा है। और एक मर्द है, और एक मर्द जो भाई है मेरा। मेरी जिंदगी जी
کہ میں ان کا کہا کیسے تسلیم کر لوں کہ میں نے تو دیکھا ہے ایک مرد وہ ہے جو مجھ کو میرے باپ کی شکل میں ہے ملا، اور مجھے دکھ میں تکلیف میں دیکھ کر ایک دم جو تڑپ اٹھتا ہے، میری زندگی کو جو خوشیوں سے بھرنے کی خاطر جوانی میں بوڑھا سے لگنے لگا ہے، اور ایک مرد وہ ہے جو بھائی ہے میرا، اگرچہ ہے چھوٹا مگر وہ میرا مان ہے اور میری شان ہے، اور وہ ہر پل میری آبرو میری عزت لٹنے کو تیار ہے، تحفظ کیا میرے لیے ایک احساس ہے، اور ایک مرد وہ ہے جو میرے لیے گھنا صاحباں ہے، مجھے ہر طرح سے جو دکھ اور تکلیف میں رکھ کے محفوظ خود مشکلیں جھیلتا ہے، وہ جس کے سبب سے میں حاکم ہوں ایک چھوٹی سی سلطنت کی، جہاں میری مرضی میرا حکم چلتا ہے، میں مطمئن ہوں خیر شاد ربی اگر سجدہ جائز میرے بعد ہوتا تو شوہر کو ہوتا، کروں اختلاف اپنے رب سے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ہوں مسلمان اور ایک مرد ہے میرا بیٹا، مجھے یہ یقین ہے کہ میری خدمت سے اس کو جنت ملے گی، سو مجھ کو جو میرے خدا نے دیے ہیں حقوق ان سے میں مطمئن ہوں، تو مجھ کو جو میرے خدا نے دیے ہیں حقوق ان سے میں مطمئن ہوں، میرا مرد سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، میرا مرد سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جو عورت کی عزت نہیں کرتے وہ تو بہت تھوڑے سے ہیں، جو عورت کو رتبہ وہ دیتے نہیں ہیں جو رب نے دیا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے تھوڑے سے ہیں جو بظاہر تو ہیں یہ مرد، لیکن انہیں مرد کہنا تو مردانگی کی بھی توہین ہوگی، اور انہیں مرد کہہ کر نہ مردوں کی عزت کو پامال کیجیے، مگر آپ عورت کا بھی نام لے کر زمانے میں اس کا تماشا نہ کیجیے، سرے عام اس کا تماشا نہ کیجیے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، زبردست زبردست۔ یہ بہت اتفاق تھا کہ مرد عورت کے جھگڑے میں یہ میرے سامنے آ گئے۔ رجب چودھری صاحبہ آ گئی ہیں، اس سے بھی کچھ سن لیں۔ جی رجب چودھری صاحبہ آئی ہیں، ان سے کچھ سن لیں۔ السلام علیکم۔ جی ضرور، السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، رجب آئی ہیں، رجب آپ کو آپ اپنا آپ تعارف کرائیے جناب پورا۔ رجب چودھری، رجب جعفری، رجب چودھری۔ صاحبہ آج ہی آپ نے اپنا گروپ ہمارا گروپ جوائن کیا ہے نا؟ بالکل۔ تو جناب سوری مجھے پتا نہیں تھا، میں نے کہا ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ ماشاءاللہ آپ کی بھی کتاب کی بھی تقریب ہوئی ہے الحمدللہ، بہت مبارک ہو رجب صاحبہ، بہت مبارک ہو شکریہ، بہت شکریہ، بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ، رجب مبارک ہو آپ کو نوازش کتاب، میں نے اور گروپ اس میں بھی دیکھی تھی آپ کی۔ جی جی نوازش۔ رجب صاحبہ کتاب کب پہنچی؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میری کتاب راملال صاحب کل سے رجب سے بات کی آپ نے؟ رجب سے بات کی؟ جی میں نے بات کی ہوئی پہلے۔ ماشاءاللہ۔ تو رجب صاحبہ سنائیے اس سے پہلے کہ ہمارا یہ جو جی زوم کا ختم ہونے والا ہے۔ جی عرض ہے کہ سبینہ بھی آپ کو دیکھ کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، آپ میری پسندیدہ شاعرہ اور فیوریٹ شخصیت ہیں ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، مجھے بھی آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت شکریہ، یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ میری بہن مجھے بہت پسند ہے۔ تبیم جی سب کی پسندیدہ ہے۔ لو یو، تھینک یو سو مچ۔ کیا ہوگا اب تک تو اور سب سے بڑی بات ہے سبین صاحبہ کی مسکراہٹ بہت خوبصورت ہے۔ جی تھینک یو سبین سو صاحبہ مچ۔ جی جی آپ ہستی بہت خوبصورت ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، اور یقیناً میرا خلوص آپ لوگوں تک پہنچتا رہتا ہے، کیونکہ میں ادب کے لیے کام کر رہی ہوں، اور آج آپ کو بھی ہم ماہی اپنے گروپ میں انشاءاللہ شامل کریں گے، آپ دیکھیے گا بہت اچھا گروپ چلتا ہے ہمارا۔ آپ بھی فکر رہیے، مجھے ایڈ کیجیے، انشاءاللہ میں وہاں پر اپنا اچھا کام دوں گی، اور انشاءاللہ بہت پسند آئے گا۔ جی ماہی صاحبہ بہت پیاری ادبی شخصیت ہیں۔ جی ماشاءاللہ،
تو رجب ارشاد ہو، اس سے پہلے ٹائم ختم ہونے والا ہے، کلوز ہونے والا ہے. عرض ہے چلے، عرض ہے کہ کہیں کوئی مجھ پہ مر گیا ہے، کہیں کوئی مجھ پہ مر گیا ہے، میرا بھی دل غم سے بھر گیا ہے. کیا خوبصورت، میرا دل بھی کیا، بہت اچھے. کہیں کوئی مر گیا ہے، میرا بھی دل غم سے بھر گیا ہے. کیا کہیں، طلب کا دریا بکھر گیا ہے، طلب کا دریا بکھر گیا ہے، وفا کا پیمانہ بھر گیا ہے. کیا کہنے، بہت اچھے. بہت شکریہ. محبتوں کا نگار خانہ، محبتوں کا نگار خانہ کیا کہیں، رفاقتوں سے سنور گیا ہے. کیا کہنے، بہت خوبصورت شعر. رفاقتوں سے محبت سنور کا گیا، نگار خانہ رفاقتوں سے سنور گیا سنور ہے. گیا. بہت خوب. تیری نگاہوں کا تیر دلبر، تیری نگاہوں کا تیر دلبر میرے جگر تک اتر گیا ہے. اتر گیا ہے، بہت اچھے. کیا بات ہے، اتر گیا ہے. کسی نے بھی ضابطہ ہے توڑا، کسی نے بھی ضابطہ ہے توڑا، تو جرم میرے ہی سر گیا ہے. بہت اچھا. تو جرم میرے ہی کیا سر گیا. کہنے، تو جرم میرے ہی سر گیا ہے. کیا کہنے. اور شعر دیکھیے گا کہ خبر نہیں طنز ہے کہ تحفہ، خبر نہیں کہ طنز ہے کہ تحفہ، وہ آنکھیں چوکھٹ پہ دھر گیا ہے. کیا کہنی، بہت خوبصورت. خبر بہت نہیں، کیا کہنی، خبر نہیں طنز ہے کہ تحفہ، وہ آنکھیں چوکھٹ پہ دھر گیا ہے. کیا کہنی، سبحان اللہ. تمہاری یادوں کا سرد موسم، تمہاری یادوں کا سرد موسم دل و نظر میں اتر گیا ہے. بہت خوبصورت. سبحان اللہ. تمہاری یادوں کا سرد موسم دل و نظر میں اتر گیا ہے. بہت اچھے. لباس بن کر میرے بدن کا، لباس بن کر میرے بدن کا، وہ جسم و جاں پر بکھر گیا ہے. بہت اچھی. بہت بہت شکریہ. وہ جسم و جاں پر بکھر گیا ہے. تمہاری محفل میں جو بھی آیا، تمہاری محفل میں جو بھی آیا ہے تو چشمے تر گیا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. تمہاری محفل میں جو بھی آیا، جو بھی آیا گیا ہے تو چشمے تر گیا ہے. بہت اچھے. اور نکل رہا تھا جو خوف دل سے، نکل رہا تھا جو خوف دل سے، جو خوف دل سے وہ جاتے جاتے ٹھہر گیا ہے. بہت خوبصورت، بہت پیارے، بہت اچھے. کبھی جو اترا تھا آ کے دل میں، کبھی جو اترا تھا آ کے دل میں، وہ شخص دل سے اتر گیا ہے. کیا کہنے، بہت اچھے. کبھی جو اترا تھا آ کے دل میں، وہ شخص دل سے اتر گیا ہے. اتر گیا ہے. بہت اچھا ہوا. رجب وہ اپنوں نے دکھ دیے ہیں، رجب کو رجب وہ اپنوں نے دکھ دیے ہیں کہ حوصلہ میرا مر گیا ہے. کیا بات ہے. بہت سبحان اللہ. بہت شکریہ. بات ہے رجب. اس میں کب تھا جو ہم نفس کام کر گیا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. بہت بہت شکریہ. کہیں کوئی مجھ پہ مر گیا ہے، میرا بھی دل غم سے بھر گیا ہے. بہت خوبصورت رجب. اور انشاءاللہ اب میں کامران بھائی، اب جب آپ کیجیے گا تو فیس بک پہ لائیو بھی کیجیے گا، وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ انتہائی کم وقت کے اندر مشاعرہ بلایا تھا، جو کہ 3 گھنٹے کے نوٹس پہ یہ مشاعرہ ہوا ہے، جو کہ میری نظر میں کامیاب ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اسے پڑھ لیا اور ہمارا ٹائم پہ بھی مشاعرہ ختم ہو جائے گا. جی جی. اب ماشاءاللہ 8 تو بج گئے نا، آپ نے 8 بجے تک کا ٹائم دیا تھا نا. 8 بجے تک کا ٹائم تھا. ہاں بس 1-2 منٹ. کامیابی کی پہلی سیڑھی پہ ہم لوگوں نے پاؤں رکھ دیا ہے. کامران صاحب تو انشاءاللہ آگے بھی کامرانیاں ہی ملیں گی، وہ بھی کامران صاحب کے ساتھ. بہت شکریہ. کامران صاحب آپ انشاءاللہ مائی اچھی کاوش ہے آپ کی ہے.
अमीन साहब को इनको भी शामिल कर लीजिएगा। हाँ कामरान साहब ने मैं को मैंने एडमिन बनाया हुआ। शामिल कर लिया, माही को मैंने बारगाह में शामिल कर दूंगा। अच्छा, और अमीन साहब को भी कर दीजिएगा। अमीन साहब को अमीन मैं साहब जी 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 बड़ा आप अच्छा लग सबका रहा है, बहुत हम लोगों ने भी इधर Zoom बहुत पे शुरू अच्छा कर लगा दिया। आप सबको देख कर। इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे तो हम लोग अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन कामरान साहब ये आपने अच्छा सिलसिला शुरू किया, इसलिए कि हम लोग कर रहे हैं और अटेंड करते हैं Zoom पे उन शायर से मुलाकात हो गई जिनसे मिलना बड़ी ख्वाहिश होती थी। जी तो जी Zoom एक बहुत अच्छी चीज है, कोरोना ने हमें सिखाया है कि किस तरह हमारे दूर दराज के जो थे हमारे, वो हम सारे करीब आ गए। तो जी मुशायरा तो यही चीज होती है, जिनसे हमारी मुलाकात थी उनसे मुलाकात है, वो बड़े बड़े लोग जिनसे हसरत है लोगों को मिलने की, वो करीब आ जाते हैं। जी जी बिल्कुल, आगे भी मेरी खिदमत जारी रहेंगी, आप फिक्र न करें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कामरान साहब अदब इंशाल्लाह। की बेलौस खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि शायर भी नहीं है ना, जैसे हमें तो फिर भी गजल सुना ली, हमारी एक वो हौसला अफजाई हो गई और तशनगी हमारी दूर हो गई, लेकिन अदब के कामरान लिए साहब तो पैन पकड़ना ही बड़ी खिदमत है, और ये तो हमें सोशल कामरान मीडिया साहब के तो बहुत जरिए काम कर रहे तो हैं आगे कर और रहे हैं, अदब को फैला रहे हैं, बहुत बड़ी बेइंतहा बात है। काम कर तो रहे मैं हैं जो कामरान साहब जिसमें बाकी। किताबों के ऊपर काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होगी, PDF की लाइब्रेरी। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। फिर अब सबको खुदा हाफिज किया जाए इससे पहले कि जूम खत्म हो जाए। हाँ मतलब बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। कि आपने मेरी आवाज को और सब लोग शामिल हो गए मेरे साथ। बहुत आपके आप जिस बहुत तरीके से शुक्रिया आपने और आपकी बात सुनी इंशाल्लाह थी हम आपस में, और सब मेरे पीछे चल रहे हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी जो भी होगा हम मिलजुल कर थोड़ा सा प्लान चलेंगे। थोड़ा सा वक्त देंगे ताकि लोग रेडी हो सके, टाइम पे आ सके। आज तो अचानक बुलाया तो किसी के पास वक्त नहीं था, कोई 10 बजे कह रहा था, तो हमने 7 बजे का अनाउंस कर चुके थे, इसलिए हमने 7 बजे शुरू कर दिया उसको। बिल्कुल अच्छी बात है, अच्छी बात है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं और बात करते हैं, और आप सबको खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।